Good evening, all of you. On the seventh day of International Film Festival of India, today we are fortunate to have with us director of three movies. We have with us Mr. Utpal Kalal, director and producer of the movies The 14th February and the Beyond, Padma Shri awardee Shoham Narayanan, The 14th February and Beyond. It's Indian Panorama non-feature film. The documentary takes a deep critical look into Valentine's Days, which can often lead to some very dark memories, humiliation and rejection and self-esteem crisis for others. The film explores the origin of this day and how it's been twisted as a result of commercialization. It explores its impact on the mental health of our society. It also reveals the shocking facts about the commercialization of Valentine's Day, the spending and tradition that have been overlooked until now. After finishing his medical studies, Utpal Kalal followed his passions for cinema. He is a filmmaker who has directed several music videos, short documentaries, commercials. The 14th February and Beyond is his first feature-length documentary film, which has won multiple awards internationally. The 14th February and Beyond's director, Mr. Utpal Kalal, address. Thank you so much for the generous introduction. We are humbled. And we have today with us our sound designer Anup Rupanwar and psychologist Shilpa Agrawal. She is the key cast. And cinematographer Kaustubh Manchekar. He is the DP of this film. Another DP could not make it to here. Viraj Tadwalkar. First of all, I would like to say thanks to everybody for joining the press conference. I am a doctor turned filmmaker, The 14th February and Beyond. This film is about Valentine's Day. The film explores Valentine's Day globally, commercially, capitalistic nature of this highly commercialized holiday, and psychologically, and the impact of this highly commercialized holiday on the mental well-being of our society. Film explores how it is tampering with the mental health of our society and how a day that was supposed to be filled with love have turned into a human-made disaster, a big chaos. So film explores many dimensions of Valentine's Day globally, India, and how it is started in West, the inception of it, and today in contemporary world, what are the consequences that this day has brought to the society. And as well as this film is not about against of love or celebrating Valentine's Day. If there is a day of celebrating love, nothing can be amazing than that. But on what cost? The consequences and how this day has turned out, how the multinationals are milking out, how they are using human tender mind to manipulate them and using as a puppet to just cash out and milk out common man. So this film explores many dimension of the Valentine's Day. Yesterday we had a wonderful screening of this film, and I'm so glad that we had house full of this film and people were so immersed into this documentary because one thing that I was very much clear when I was when we were researching on this subject, I didn't want this film to look in just journalistic facts that we are doing or in a journalistic way. I wanted to tell the story in a very narrative way, in a way where people can stick to it and in 1 hour just understand the situation that we try to present regarding this highly commercialized holiday. There are many important people and many intellectuals are appearing in the film. Dr. Sudhir Bhave, there is a DYSP Manjita Vanzara, High Court lawyer Yashma Mathur, Indian American author Rajiv Malhotra, and scholar Nityanand Mishra, psychologist Shilpa Agrawal, and Namita Singh. So these are the people who talk about it. There is a appearance of US ex-presidents in the film from the archivals, and there are statements from Obama, and there are many more things that have we have fetched together in the film to present this narrative. And I'm so glad that my colleague here he said that in the pandemic actually the pandemic pulled us apart, but again the art is bringing us together, which is amazing thing. And for independent filmmakers like us, we are becoming the part of this post COVID
where the theaters are opening, and Indian Panorama Broadcasting Ministry and Sri Prakash Javadekar ji in his under guidance, how they have managed to pull out this wonderful festival, ESG Goa. So this is something very positive, and I'm so glad that we could premiere our film here. And thank you so much. And yeah, please. And if you have question, we'll be doing the Q&A. Please. हम आपसे जानना चाहेंगे कि लाइक हमारे कंट्री में देयर इज ए फेस्टिवल कॉल्ड बैसाखी, होली. ऑल मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल ज़्यादातर जाते हैं एग्रीकल्चर पर. इफ़ एग्रीकल्चर है फेस्टिव मूड, तो वाई नॉट लव. और आपका जो डॉक्यूमेंट्री है वो पूरी तरह से उसका मान लीजिए 14 फरवरी के जो एस्पेक्ट्स में तमाम चीज़ें बहुत होती हैं. आप गाड़ी से चलते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, बट वो एस्पेक्ट को लेकर के कहीं अगर ये लगे कि एक तरफा हो रही है तो इस पर क्या आप कमेंट करेंगे. और दूसरे जो एस्पेक्ट वो है कि फेस्टिवल ऑफ लव, हाउ टू बी, व्हाट टू बी, या जैसे भी क्या होना चाहिए उस पर तो मूवी बननी चाहिए ना. बाकी ये कि क्या नहीं होना चाहिए वो तो ठीक है, वो तो अवेयरनेस का पार्ट है. थैंक यू, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. जैसे कि आपने बोला कि एक्सीडेंट तो होते हैं, तो उसके लिए मतलब मैं इसके लिए इसी से एक जवाब देना चाहूँगा कि जो रोड जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं तो गवर्नमेंट वहाँ पे साइन बोर्ड लगाती है कि कृपया धीरे चलिए, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र. तो ये फिल्म किस वैलेंटाइंस डे या सेलिब्रेशन ऑफ लव का जो आइडिया है उसके अगेंस्ट नहीं है, उसके फेवर में है. फिल्म बात करती है कि एक दिन जो प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए एग्जिस्ट करता है. इवन दो इसकी अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो कई सारे ओपिनियंस हैं, माइथोलॉजीज़ हैं, और कोई भी इसका एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री नहीं है वैलेंटाइंस डे का. ठीक है, फिर भी अगर कोई दिन अगर प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है एंड पीपल आर सेलिब्रेटिंग, विच इज़ ब्यूटीफुल थिंग. लेकिन सवाल ये है कि उस प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए अगर व्हाट इफ़ उस प्यार की फीलिंग का ही एक्सप्लोइटेशन होने लग जाए. व्हाट इफ़ मल्टीनेशनल कंपनीज आर यूजिंग दिस ब्यूटीफुल वर्ड लव एंड उस कंधे पर रखकर ट्रिगर दबा रहे हैं और पीपल आर जस्ट साइकोलॉजिकली बीइंग टेम्पर्ड. सो फिल्म कहीं पर भी ये नहीं कहती है कि somebody should not be celebrating वैलेंटाइंस डे और शुड बी सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे. फिल्म तो आपने एक देखा होगा कि फिल्म कामा सूत्रा की बात करती है, और कामा सूत्रा में जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों की दे विच इज़ लिमिटेड टू सेक्स, बिकॉज उसको भी डिस्टॉर्ट कर दिया गया है. बट कामा सूत्रा में जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ इट अबाउट सेक्स. It is about the urban living, it is about love, and there are 4 kind of loves, so documentary completely प्यार को आगे रखती है, और महत्वपूर्ण जो ये ब्यूटीफुल फीलिंग है उसको बनाए रखने के लिए और उसके साथ में टेम्पर न करे. अगर एक हॉलीडे सेलिब्रेट हो रहा है दैट इज़ विच इज़ फाइन, बट अगर आप क्या कहेंगे अगर उस दिन अगर इफ़ यू टेक एट द स्टेटिस्टिक, अगर किसी पर्टिकुलर हॉलीडे के दिन अगर कोई 50 to 60 सुसाइड्स हो रहे हैं, व्हाट यू विल से अबाउट दैट. अगर कोई हॉलीडे है जहाँ पर यूएस के सुसाइड प्रिवेंशन ग्रुप के चीफ जो हैं वो अगर ये कहते हैं कि फरवरी इज़ द ओनली मंथ इन यूएस जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुसाइड के कॉल्स आते हैं. ऐसी रिपोर्ट से जो ये बताती है कि फरवरी इज़ द ओनली मंथ जहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है. बीबीसी ने 2002 में रिपोर्ट करा था कि डेज प्रेसिडिंग टू वैलेंटाइंस डे देयर इज़ अ स्पाइक इन द ईव टीजिंग मोलेस्टेशन. सो बेसिकली ये फिल्म कहीं भी ये नहीं कहती कि प्रॉब्लम्स वैलेंटाइंस डे से होती हैं. फिल्म ये बताती है कि ये वैलेंटाइंस डे का जो कॉन्सेप्ट है विच इज़ बिंग डिस्टॉर्टेड एवरी ईयर, तो वहाँ पर हाउ इट इज़ एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का काम कैसे कर रहा है बहुत सारी ह्यूमन टेंडेंसी नेगेटिव टेंडेंसीज़ को बाहर लाने में. सो फिल्म ये कहती है, और फिल्म का एंडिंग आपने देखा होगा कि फिल्म में हम ये कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, सो कभी कभार इंडिया में ये चीज़ें होती है कि पीपल इफ़ दे आर अगेंस्ट ऑफ आइडिया ऑफ दिस और कुछ गलत हो रहा है तो दे डीम इट टू द वायलेंस. So film talk about ki which is not right. If you have some problem, if you see there is some problem going with something, rather you have to have the conversation. So this film is about igniting a conversation, and maybe ये तो film Valentine's Day को support करती है, प्यार की feeling को support करती है, क्योंकि that's what I'm saying ना. If you are celebrating a love and celebrating a day
So it should be about love. It shouldn't become something else. So that's what it is. Shilpa Agrawal. I am Shilpa Agrawal, and I'm the psychologist. I have appeared in this film. Basically, what sir you asked कि Valentine's Day पर जो प्रपोज करते हैं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर एक क्वेश्चन आया था कि लव के अगेंस्ट है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. समझने वाली बात यह है कि वैलेंटाइंस डे क्या है और किन के लिए है. वैलेंटाइंस डे अगर हम एक जनरल भाषा में समझे तो वो एक प्यार का दिन है. प्यार मतलब सिर्फ रोमांस नहीं होता है, लेकिन जो अभी स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें मतलब रोमांटिक नोशन ऑफ लव यही प्रेवलेंट है. दूसरी बात, अगर रोमांस सेलिब्रेट करना है तो उसकी एक एज होती है. ये तो हम कितना भी मॉडर्न हो जाएंगे, इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि एक टीन एज बच्चा है 10-12 साल का है तो वो किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में आए तो वो सही है. क्या हम मानते हैं ये बात? कितने भी मॉडर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये मेडिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली, एथिकली किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है. तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि वैलेंटाइंस डे को अगर एक्सप्लोर कर रही है ये फिल्म, तो ये दिखाया जा रहा है कि ये दिन अच्छा है अगर ये प्यार को सच्चे अर्थ में सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से मनाया जाए उन लोगों द्वारा जो इसके केपेबल हैं या एलिजिबल है. लेकिन हो इसका उल्टा रहा है. जो बड़े हैं उन्हें इतनी फिक्र नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इनटू रिलेशनशिप्स, दे आर ऑलरेडी इनटू मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स. लेकिन ये कौन लोग ज़्यादा मना रहे हैं? जो टीनेजर्स हैं, और उनको पता नहीं कि वो क्यों मना रहे हैं. अगर आप उनसे पूछते हैं कि आप हग डे क्यों मना रहे हो, they don't have any concrete answer. If you ask them कि आप टेडी डे क्यों मना रहे हो, उनके पास कुछ पता नहीं है, क्योंकि उन पर एक थोपा गया कॉन्सेप्ट है, उनको बम्बार्ड किया गया है, किसी को कोई ओरिजिन के बारे में पता नहीं है. पर इस पूरे चक्रव्यूह में वो लोग जो ट्रैप में पड़ते हैं कि हमें भी एक चाहिए गर्लफ्रेंड, हमें भी बॉयफ्रेंड चाहिए, अगर नहीं है तो हमारी सेल्फ एस्टीम खतरे में आ गई है कि क्या हम अच्छे नहीं है क्या जो हमको कोई प्यार नहीं करता. तो प्यार को सिर्फ इतना जो संकीर्ण दायरे में जो समेट लिया गया है और इसको जो फ्यूल किया गया है मार्केट के द्वारा कि आप वैलेंटाइंस डे पर अपना कॉन्वर्सेशन ऑन करो या फिर आप वैलेंटाइंस डे पर शर्माओ मत. लेकिन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं जानती हूँ कि कितने सारे बच्चों को अपने आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाती है कि मैम हमको एक बार ये लगता है कि ये गलत है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हमारे फ्रेंड्स हमको चिढ़ाते हैं कि अरे तुम तो बहन जी हो या तो तुम तो ऐसे ही हो, भाई साहब हो, तुम लोगों को ये सब नहीं समझेगा. और फिर इस चक्कर में वो लोग किन हदों को पार कर जाते हैं, और जो पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर्स, हर किसी को ये महसूस होता है कि पता नहीं ये बच्चे कहाँ से सीख गए. तो ये जो फिल्म है इस विषय को उजागर करना चाहती है कि प्यार किया जाए. लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई किसी को प्यार करता है तो वो उस पर एसिड कैसे फेंक सकता है? अगर कोई किसी को प्यार करता है तो वो उसकी उम्र से कम जो उसका जो दायरा है उसमें उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ कैसे सकता है? अगर किसी ने किसी को प्रपोज किया है और अगर वो उसको रिटर्न में हाँ या जवाब नहीं देता है तो उस पर वो जानलेवा हमला कैसे कर सकता है? तो प्यार के अर्थ को समझा ही नहीं गया है. किसी और फीलिंग को प्यार का नाम देकर जब ये दिवस मनाया जा रहा है तो उसके कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, कितने सारे मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. जो शुरुआत होती है वैलेंटाइंस डे पर, क्योंकि सबको लगता है कि वैलेंटाइंस डे है आज तो प्रपोज कर लिया जाए, लेकिन वो जो शुरुआत होती है और वो विशियस सर्कल पूरे साल भर चलता है. इस विषय को एक्सप्लोर किया जा रहा है. और सर जो प्रपोज करने वाला जो आइडिया है वो एक एज ग्रुप के लिए बहुत सही है, बट आयरॉनिकली उस एज ग्रुप के लोगों को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता. आप लोग खुद सोचिए कि क्या आप लोगों को वैलेंटाइंस डे का ऐसा क्रेज़ है क्या जैसा इन छोटे छोटे बच्चों में दिखता है? तो ये कहाँ से आया? कैसे मार्केट इसको ऐसे मतलब पूरा इन्फ्लुएंस कर गया है? और इसीलिए वो जो सेल्स का बताया जाता है कि दिवाली हमारा नेशनल फेस्टिवल है, फिर भी उसकी सेल्स आज वैलेंटाइंस डे ने ओवर पावर कर ली है. और ये सारी चीज़ें एक सोची समझी मतलब एक नज़र आती है कि गिमिक चल रही है, और उसको समझे और फिर भी अगर हमें सही लगता है तो उसको मनाएं. थैंक यू. Thank you. Yeah, thank you so much. Okay. Anybody wants to ask a question? Utpalla, why this transformation from doctor to films? मैं एक छोटे से गांव राजस्थान में फलासिया है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ. वहाँ पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मेरा बचपन की पढ़ाई वहीं पर हुई है. तो उस वक्त पर तो पैशन क्या होता है क्या नहीं होता है सारी चीज़ों का कुछ इल्म वगैरह था नहीं. तो उस वक्त पे बस
जब स्कूल वगैरह चलते थे तो कुछ क्रिएटिविटी लिखना, हिंदी की कुछ पोइम्स वगैरह पढ़ना और ये सारी चीज़ें चलती थी। और उसके बाद में धीरे धीरे जब सिटी की तरफ मूव हुए हायर एजुकेशन के लिए, जब मैं मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा था कोटा सिटी से, जहाँ पर इंडिया का मेडिकल हब कहा जाता है इंजीनियर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पर जाके धीरे धीरे दुनिया देखी एक्चुअली। उससे पहले तो पता नहीं था, मैंने 12th क्लास तक तो शायद एक आधी फिल्म भी नहीं देखी थी, फिल्म मेकिंग का एफ क्या होता है वो भी नहीं पता था, ठीक है। तो उसके बाद में जब मैं कोटा सिटी गया, कुछ फिल्म्स देखी उस टाइम पर, और तभी मेरे को थोड़ा सा क्रिएटिविटी में थोड़ा सा इंक्लिनेशन बढ़ा। तो स्टार्ट में आई वर्कड एज अ रेडियो जॉकी एट माई एफएम, देन आई वर्कड एज एन एंकर, बट तब मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। स्टडीज़ चल रही थी बट उसी के साथ में वो जो कुछ करने की जो एक अंदर से एक इंट्यूशन जो रहता है वो कंटिन्यूस मेरे को हिट करता रहता था कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ डिफरेंट करना है। बट जब मैं मेडिसिन के अंदर गया तो अगेन यू ग्रो इंटेलेक्चुअली, यू आर स्टडिंग लॉट ऑफ स्टफ एंड यू, बिकॉज आप एक बहुत ज़ीरो से चालू करते हैं। बचपन की पढ़ाई ऐसी जगह से हुई ही नहीं है जहाँ पर कुछ जानने को मिले सर्टन सब्जेक्ट्स के अलावा, ठीक है। तो उसके बाद जब मेडिसिन के टाइम पर कई सारी इंटरनेशनल फिल्म्स देखने का मौका मिला, दोस्तों से नए नए दोस्त बने एंड इंटरनेशनल फिल्म्स देखी। जब वो फिल्म्स देखी तो मेरे लिए तो एक पूरी नई दुनिया थी, एंड द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दोस स्टोरीज हैड ऑन मी वाज सो विसरल दैट आई वाज सो मूव्ड। मुझे फिगर आउट करने के लिए फिल्म्स देखने के बाद मुझे इट टुक मी अ वाइल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, मतलब ये फिल्में होती है। कुछ हिंदी फिल्में मेरी देखी थी और कुछ अच्छी हिंदी फिल्में जो मैंने नहीं देखी थी, तो आई वॉज नॉट वेरी मच अवेयर। So, but when I watched some international cinema and I was so much moved with those films, and I watched some documentaries, particularly Werner Herzog, legendary documentary filmmaker, and his documentary Encounters at the End of the World, Into the Abyss. ये फिल्में मेरे को इतना इम्पैक्ट डाली कि मैंने सोचा कि दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। वो सेटिस्फेक्शन मिल गया कि दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, एंड आई वाज स्टडिंग मेडिसिन। सो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अब क्या कैसे क्या करूँगा। देन आई वाज चेकिंग आउट ऑन सम फिल्म स्कूल्स कि कैसे क्या हो सकती है चीज़ें, बट तभी भी मेडिसिन करनी थी एंड दैट वाज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। अभी जाऊँगा तो पीपल विल से कि आर यू क्रेजी, यू वांट टू बिकम अ फिल्म मेकर, राइट। बट एट द सेम टाइम पैशन था, उसको मैंने शेप करने की कोशिश करी। उसको सिर्फ सपने देखने तक लिमिट नहीं किया मैंने। आई स्टार्टेड वॉचिंग फिल्म्स एवरी डे, आई स्टार्टेड स्टडिंग फिल्म्स, स्टडिंग देम इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, देयर स्क्रीन प्लेज, देयर स्टोरी टेलिंग, शॉर्ट कंपोजिशन, सिनेमेटोग्राफी। सो उस तरीके से स्टडी करना चालू किया, खुद का एक सिलेबस बनाया कि मैंने मंडे को ये करना है, उसके बाद सैटरडे को मुझे शॉर्ट कंपोजिंग सीखनी है। और फिर उसी वक्त पर कौस्तुभ मंचेकर, मेरे फ्रेंड हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इवन ही इज़ अ डॉक्टर एंड ही वॉज वर्किंग फॉर नेट जियो, ही वॉज डूइंग सम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। सो उस टाइम पर वी वर शेयरिंग द सेम फ्लैट। सो मैंने बोला कि वाई डोंट यू ट्राई फॉर द सिनेमेटोग्राफी एंड लेट अस स्टार्ट अ डायरेक्शन एंड ऑल, एंड देन वी प्रोड्यूस्ड अ म्यूजिक वीडियो, डायरेक्टेड अ म्यूजिक वीडियो फॉर अ रशियन एंड इंडो बैंड. So from there the journey started, and slowly I started making short films and the short documentaries and all that. And then उसके बाद में वैलेंटाइंस डे का सब्जेक्ट कई अरसों से दिमाग में था, बचपन से ही। छोटे से गांव में जब देखी ये सारी चीज़ें होती थी, गर्ल्स के नाम न्यूज़पेपर में लोग शायरी डाल देते थे विदाउट परमिशन। गांव 500 लोगों का होता था, लड़कियों की ऐसी हालत होती थी दूसरे दिन। स्कूल कॉलेजेस में लोग टॉयलेट्स में दे वर यूज्ड टू राइट अब्यूजिव वर्ड्स ऑन वैलेंटाइंस डे बिकॉज देयर लव वाज नॉट रिटर्न्ड। सो फिल्म मेकिंग हो गई इस बीच में। उस बीच में क्यूरियोसिटी वैलेंटाइंस डे को लेके बहुत बढ़ती जा रही थी कि एक्चुअल में एक प्रॉब्लम क्या है, एंड कहीं ना कहीं मेरे को भी कई दफ़ा पीयर प्रेशर महसूस हुआ। तो सारी चीज़ों को लेते हुए फिल्म मेकिंग चालू हो गई इधर, और स्टडी और समझना सीखना नहीं छोड़ा। एंड जब ये डॉक्यूमेंट्री करनी थी तो हमें पता था कि इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, एंड इट वाज माय फर्स्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट, अ मिड लेंथ फिल्म और यू कैन कॉल इट फीचर लेंथ। एंड उसको लेकर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो हमने 2 साल का रिसर्च किया इस फिल्म पर, और रिसर्च करने के बाद में हमने डिसाइड किया कि हम फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, उसके लिए कुछ रेफरेंसेस हमने यूज़ करने पड़ेंगे बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फॉर दिस डॉक्यूमेंट्री वी यूज्ड 2 filmmakers references, Matthew Hanman, his Carterland, he is my inspiration in documentary filmmaking, and Eva DuVernay, black filmmaker, her documentary 13th.
we used two references for this film, and I wanted to give the immersive experience for this documentary, not just journalistic way कि facts दिखा दिए and just we are reporting something, but rather finding out the truth rather than just hunting out the facts. So ये एक जर्नी फिल्म मेकर की रही और यहाँ पर फिल्म आई और 49th ईफी पर मैं यहाँ पर एज अ सिनेमा एंथुजियास्ट था, तभी बाहर उधर घूम रहा था, तो आई वॉज यूज टू वॉच द फिल्म मेकर्स एंड तब ये फिल्म की शूट चल रहा था एंड I was not confident कि we could bring this film here in IFFI, but when I got to know that this film is here and then I was so moved and इसी के साथ film has like having it is shown in 10 countries and it is releasing in Spain in February. RTV broadcasters are going to release in Spanish this film, and so yeah, it is about dream and it is about sticking to the curiosity that you have. So thank you, and I'm sorry I took a little bit longer, but yeah. डॉक्टर कलाल सर ने पहले ईफी में डेलीगेट करके पार्टिसिपेशन किया, वहाँ पे सपना देखा कि मेरी फिल्म ईफी में पहुँच जाए और इनकी 2020s में फिल्म आ रही इन ईफी. दैट इज़ वेरी गुड. When director Utpal Kalar contacted me to share my experience and expertise as a psychologist on the mental health of the children, I asked him, are you going to be another protester of the Valentine's Day? Are you going to share some solution for it? So what was his view that touched me the most? He said, I just want to ignite a conversation that there is something wrong which is happening under this umbrella of Valentine's Day and nobody is looking at it. I'm not against love. I'm not against Valentine's Day for that matter. And I am not giving any solution. But I just want to show that this is also happening under Valentine's Day, which is being ignored and neglected very easily. And as an expert, what do you feel? What are your cases regarding Valentine's Day? Those can connect the dots. I want your expertise. Then I asked him, how many experts you are interviewing? So he told me that I'm covering most of the fields that a society has. So he's going to interview a finance expert. He's going to interview a psychiatrist. I'm a psychologist, but a psychiatrist who is a medical MD in psychiatry. So he has more physiological aspect to it. Then he is having advocate and police and every corner people who are in the field. So this is actually about educating people that do not fall prey to an idea that is not of your culture, not your country. It has been imported and it is creating a big chaos in the name of love. So this is about igniting a conversation, and I feel that this has to go to the teenagers, because if they understand that if a girl is consenting that, okay, we are going to have physical relationship, still it amounts to rape, because in our constitution it is not permitted that a teenager is allowed to have physical contact even with the consent. So if a child is aware that I may fall prey to this crime, so he will be more able to prevent himself, his family, his mental health, his social health. So this is about the film, and I feel that everybody should watch the film, because this film's idea is about educating and igniting the conversation. Thank you so much. Thank you, Shilpa Agrawal madam. Any more question? One thing I would ask to you. सर, आपने दिखाया कि दिवाली का मार्केट 30,000 करोड़ रुपए है और 14 फरवरी का मार्केट 2020 करोड़ रुपए का है. तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब मार्केट चले या ना चले? मार्केट बिल्कुल चलना चाहिए. बिना मार्केट के कोई भी फेस्टिवल हो, इट गिव्स रोज़गार, लोगों को रोज़गार देता है. सो ये फिल्म अगेंस्ट नहीं है कि मार्केट नहीं हो, लेकिन फिल्म में जब हम ये बात करते हैं तो एक फेस्टिवल इंक्लूसिव फेस्टिवल होता है, और एक फेस्टिवल ऐसा होता है जहाँ पर लोग एक्सक्लूडेड महसूस करते हैं, सेपरेटेड महसूस करते हैं, लोनली महसूस करते हैं. तो do whatever you want, make how much money you want to make, but there has to be a line where you should be thinking about the society, because
we live in a society, it is based on human experience, and if somehow anything that is happening that tempers with the mental health of society, then there has to be a question that why it is happening, there has to be research. So we show that ki there is a market of Diwali is that, and the online sales are higher than Diwali in India. So ये तो हो रहा है, but we focus more about ki inclusiveness and excluding. So even the film proposes the idea कि ये चीज़ें क्या कम हो सकती हैं क्या, why do we make it just about if you have someone then only you can celebrate the Valentine's Day. You can celebrate the Valentine's Day with your parents, with your friends, and make it more including people. And so उसी के साथ में लोग lonely नहीं महसूस करेंगे, और बहुत सारी problems जो होती है, suicide attempt कर लेना, बहुत सारे cases ऐसे जो सामने आते हैं वो नहीं होगा. तो the film has that sort of focus. आपने फिल्म में यह दिखाया है कि कुछ लोग मतलब वैलेंटाइन डे के टाइम लड़कियों को प्रपोज करते हैं और मोस्ट ऑफ देम दे आर रिफ्यूज्ड, और रेप केसेस, वायलेशन, ये दिखाया. आप मतलब क्या दिखाना चाहते हैं उसमें? So basically, if somebody is an adult, इंडिया में 18 ईयर एज है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, बट जो और मोस्टली वैलेंटाइंस डे का इम्पैक्ट आप देखेंगे, जो क्रेजी इम्पैक्ट है वो टीनेजर्स पे है दैट आर बिलो 18. एंड देर आर केसेस दैट प्रूव दैट कि ड्यूरिंग वैलेंटाइंस डे देयर इज अ सर्टन साइकोलॉजी इन टीनेजर्स दैट इफ दे मेक द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर विच इज़ लव, कि अभी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. बट द प्रॉब्लम इज इफ अ गर्ल इज बिलो 18 and if she makes the sexual contact with boy with her consent or without her consent, it is called rape. Okay, तो ऐसी सिचुएशन में वैलेंटाइंस डे के अंदर कई सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं, और फिल्म जब ये बात करती है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ वैलेंटाइंस डे के अंदर नहीं होती है, ये प्रॉब्लम राउंड द ईयर है, बट कैसे वैलेंटाइंस डे कैटलिस्टिक बन जाता है, किस तरीके से वो साइकी वहाँ पर इस तरीके से मैनिपुलेट हो जाती है, और किस तरीके से ये सारे केसेस हैं. और प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक प्रॉब्लम है, it is associated with many problems. So वहाँ पर there has to be a question, and then there has to be a education or educating people that do not fall blindly in the trap of Valentine's Day. And I would appreciate that in that direction US government has taken a great step where they call the Valentine month a teenage pregnancy precaution month. They have called it, and even the Obama has given the statement that awareing people, not that telling them कि ये ban कर दो, वो ban कर दो, but telling them that if you are going with somebody with your date, so there has to be precautions and there has to be awareness that you should not regret, because there is a case in the film where it talks about कि how a girl went with the guy and then later she got pregnant and guy left her and she felt like suicidal कि अभी क्या करूँगा, and the exact word that guy uses was कि it is Valentine's Day, so why don't we have our relationship in that way, in a sexual way. So that is the thing, and उस पर विचार करने की बात है, उस पर फिल्म पहलुओं को निकालती है, और फिल्म कहीं पर भी ये स्टेटमेंट नहीं देती है कि ऐसा करने से ही ऐसा हो जाएगा, बट वी रादर ओपन द कॉन्वर्सेशन. Last question to Dr. Utpat Kalal. He has made a documentary film, so I am asking about future of documentary films in India. You can brief. I'll keep it very short. So this is the proof that yesterday we premiered our documentary here. The house was full completely in the pandemic during this time. So people have come to watch the film. It means that people want to watch the documentary films in India. So I would just say that just to filmmakers to encourage that keep making good documentaries. There is a lot of content out there, and the way in international cinema and international market, the people making documentaries, the way they are doing it, the kind of work they are pulling it, how cinematic experience they are giving about the documentaries. I would say that if we do that, because the most amazing thing that we heard from people yesterday that it did not feel like a documentary, and that was the biggest compliment. It made all the sense, but it did not feel like a documentary. So we should not be sticking to the
classic documentary styles, but rather we should adapt to the modern way of making documentary films. And I would say that the future would be bright. And I would request to the people, to the producers and the distributors, to take the examples from these film festivals and how people want to watch the documentaries, and bring more documentaries to cinema and the OTT platform. So this is what it is. Thank you. And